Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. As you know that we are reading the story of a young boy who learned to enjoy a very important task and helped his mom in household chores. And in today's lecture, we will read this story from page number 23 and it is para number first. So let's start. Mom explained that she woke at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. Dad's up too, I said. I know he does paperwork while I do laundry. It's the only time the house is quiet enough to concentrate. Why were you singing? I asked. I might as well enjoy my work. No use being upset. Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. It was quite an old-fashioned dryer, not like the modern ones we have today, and the lint filter had to be cleaned after every load. Can I help? I asked her. Sure. Mom started another load in the dryer and placed a large towel on the basement floor in front of the dryer. Why don't you lay down and catch a nap until we are ready for another load? The air from the dryer was warm and comfortable. I slept until the dryer buzzed. I was thrilled when Mom taught me to clean the lint filter and place the dry clothes on a folding table. She made me feel useful. I remember how she complimented me on a job well done, although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. Okay, dear students, so let's see what this story tells us. Mom explained that she woke at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. Mom explained to this young boy that she woke at 4 o'clock, यानी कि वो सुबह 4 बजे उठती है हर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को, फॉर व्हाट? टू वॉश क्लोथ्स. सुबह 4 बजे हर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को वो उठती है कपड़े धोने के लिए. कितने बजे? 4 बजे. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. And also she explained to this young boy that it was necessary to keep us in clean clothes. It was necessary to wash clothes and to keep us in clean clothes. Dad's up to, I said. This boy said to his mom that dad's up to. Dad भी उठा हुआ है, dad भी उठ चुका है. I know. Mom replied, I know. यानी कि mom वापस को बोल रही कि मैं जानती हूँ. He does paperwork while I do laundry. वो paperwork करता है जब मैं कपड़े धोती हूँ. While I do laundry. Laundry means to wash clothes. जब मैं कपड़े धोती हूँ वो पेपर वर्क करता है. It is the only time the house is quiet enough to concentrate. It is the only time the house is quiet enough. The house is quiet enough to concentrate. ये वो वाहिद वक्त होता है जब हमारा घर खामोश होता है, बहुत ज़रा खामोश होता है और तवज्जो काम पे ज़्यादा होता, जिसकी वजह से काम पे ज़्यादा तवज्जो होता है. इट्स द ओनली टाइम द हाउस इज़ क्वाइट एनफ टू कंसंट्रेट.
to concentrate, to pay full attention on concentrate means to give full attention to something, यानी कि किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, किसी चीज़ को ज़्यादा की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना, उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉम इसकी बोल रही है, इट इज़ द ओनली टाइम द हाउस इज़ क्वाइट एनफ टू कंसंट्रेट। ये वो वक्त होता है, सुबह का ये वो वक्त होता है जो जब घर में खामोशी होती है, तो उस वक्त काम पे ध्यान ज़्यादा रहता है। काम पे इंसान का हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है क्योंकि घर में खामोशी होती है। Why were you singing? I asked. Now this boy asked his mom, why were you singing? आप क्यों गा रही थी? आप क्यों गा रही थी? ये हमने कल ही पढ़ा है, वो काम करते करते गा भी रही, कपड़े धोते धोते गा भी रही थी। I might as well enjoy my work, no use being upset. तो मॉम इसके वापस रिप्लाई कर रही है, I might as well enjoy my work. मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने काम को एंजॉय करने के लिए गा रही थी। I might as well enjoy my work, यानी कि मुझे अपने काम को एंजॉय भी करना चाहिए, काम करते करते मुझे अपने इस काम को एंजॉय भी करना चाहिए। नो यूज़ बीइंग अपसेट, इसमें मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें मुझे परेशान काम करते करते मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। So these are the words of his mom. Mom still used an old ringer washer. यानी कि बच्चा अब ये यंग बॉय बोल रहा है, मॉम स्टिल यूज्ड एन ओल्ड वॉशर रिंगर। ये जो उसकी मॉम थी कपड़े धोने के लिए, ये कौन सा रिंगर वॉशर इस्तेमाल कर रही थी आप? ये बहुत पुराना जो वॉशर था, रिंगर वॉशर जो था, वो पुराना रिंगर वॉशर इस्तेमाल कर रही थी। ये जो ओल्ड था, ओल्ड रिंगर वॉशर था, ओल्ड मीनस ओल्ड फैशनड या ओल्ड मॉडल का। बट शी वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मीनस हैप्पी एंड एक्साइटेड। यहाँ से आप देख सकते हैं इस वर्ड को, हैप्पी एंड एक्साइटेड। But she was absolutely thrilled that she and dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. Scraped together means, यहाँ पे आप देखिए, saved or collected a little at a time. लेकिन साथ में, अगर ये पुराना रिंगर वॉशर था, लेकिन साथ में उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी, खुश भी थी, एक्साइटेड। शी वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, और वी कैन से शी वॉज एब्सोल्युटली happy or excited that she and dad had scraped together enough money to get a clothes dry. क्योंकि उन्होंने, माँ और डैड ने इकट्ठे पैसे जमा किए थे, किसके लिए? टू गेट ए क्लोथ्स ड्रायर। क्लोथ्स ड्रायर मीनस, क्लोथ्स ड्रायर क्या होता है? क्लोथ्स ड्रायर होता है जो हमारे कपड़ों को कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस मशीन को ड्रायर बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए इसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। शी वुडेंट हैव टू हैंग क्लोथ्स आउट ड्यूरिंग विंटर एनी मोर। अब माँ को विंटर में, यानी कि सर्दी के मौसम में कपड़ों को बाहर टांगना नहीं था। अब उसको बाहर कपड़े टांगना नहीं था, सुखाने के लिए बाहर कपड़ों को टांगना नहीं था सर्दी में, क्योंकि अब वो क्या लाने जा रहे थे? क्लोथ्स ड्रायर। इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड फैशनड ड्रायर। लेकिन ये जो ड्रायर था, ये क्या था? ओल्ड फैशनड। इट वॉज ओल्ड फैशनड ड्रायर, यानी कि जो ये ड्रायर था जो कपड़े सुखाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे, बट इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड फैशनड। ये बिल्कुल पुराने मॉडल का ये ड्रायर था। नॉट लाइक द मॉडर्न वंस वी हैव टुडे, जैसे आज के ड्रायर होते हैं उस तरह का ये ड्रायर नहीं था। एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीनड आफ्टर एवरी लोड, और इसका जो लिंट फिल्टर था वो हर लोड के बाद साफ करना पड़ता था। लिंट फिल्टर क्या होता है? लिंट फिल्टर ए स्मॉल पॉट इन ए वॉशिंग मशीन विच कलेक्ट्स लूज थ्रेड्स फ्रॉम वॉश्ड क्लोथ्स। यानी कि ये एक पॉट होता है मशीन का, यहाँ पे ड्रायर का पॉट है, तो ये इसका एक पार्ट होता है जिसमें ये थ्रेड्स जो होते हैं, यानी कि जो धागे निकलते हैं कपड़ों से, वो इसमें जमा हो जाते हैं।
तो इस लिंट फिल्टर को अब हर लोड के बाद इनको साफ करना पड़ता था, क्योंकि हम जानते हैं ये कौन सा ड्रायर था, ओल्ड फैशनर था, यानी कि पुराने मॉडल का ये ड्रायर था। कैन आई हेल्प, आई आस्क्ड। नाउ दिस बॉय आस्क्ड टू हिज मॉम, मॉम कैन आई हेल्प यू, मॉम कैन आई हेल्प यू। श्योर, श्योर मीन्स yes, why not, you can help me. Mom started and the load in the dryer and placed a large towel on the basement floor, basement floor in front of the dryer. Mom started and the load in the dryer. अब मॉम ने दूसरा लोड स्टार्ट किया इस ड्रायर में भरना, एंड प्लेस्ड ए लार्ज टॉवल ऑन द बेसमेंट फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द ड्रायर, और एक बड़ी सी टॉवल को बिछाया बेसमेंट फ्लोर पे, यानी कि नीचे जो फर्श है उसको, उसके ऊपर एक बड़ी टॉवल को बिछाया। वाई डोंट यू ले डाउन एंड कैच ए नैप until वी आर रेडी फॉर अनदर लोड। अब इस बच्चे को ये बोल रही है, इस यंग बॉय को बोल रही है कि तब तक आप क्यों नहीं सो जाते जब तक हम दूसरे लोड के लिए रेडी नहीं हो जाते। वाई डोंट यू ले डाउन एंड कैच ए नैप, नैप मीन्स टू स्लीप फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए सोना, उसको नैप बोलते हैं। तब तक के लिए बच्चे को बोल रहे, तब तक के लिए आप नीचे सो जाओ जब तक हम दूसरे लोड के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। तो जो ये एयर था, जो हवा आ रही थी इस ड्रायर से, वो क्या थी, वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, ये गर्म थी और ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट कर रही थी, किसको, इस बच्चे को, क्योंकि इसको इसके सामने सोया हुआ था। आई स्लेप्ट until ड्रायर बजट। बच्चा बोल रहा है जब मैं, ये यंग बॉय बोल रहा है आई स्लेप्ट, मैं सोया, until द ड्रायर बजट, जब तक ड्रायर ने बजने की आवाज़ नहीं मारे तब तक मैं सोया रहा। आई वॉज thrilled when mom taught me to clean the lint filter and to place the dry clothes on a folding table. So this boy is saying now that I was thrilled, I was happy when mom taught me to clean the lint filter of this dryer. When mom taught me to clean the lint filter of this dryer and to place the dry clothes on a folding table. और मुझे माँ ने साथ में सिखाया क्या, कैसे कपड़ों को तहा के फिर टेबल पे रखना है, जहाँ पे तहाए हुए कपड़े रखे हैं, इन कपड़ों को फिर अब कैसे तहाना है और फिर कैसे उनको टेबल पे रखना है, ये मुझे माँ ने सिखाया। और साथ में उसने मुझे क्या सिखाया, हाउ टू क्लीन द लिंट फिल्टर ऑफ दिस ड्रायर। तो जब मुझे माँ ने ये सिखाया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। शी मेड मी फील यूजफुल। So this boy is saying that she made me feel useful. उसने मुझे एहसास दिलाया that I am useful, यानी कि मैं बहुत कीमती हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। I remember how she complimented me on a job well done. Complimented means praised, and I remember this boy is saying that I remember, यानी कि मुझे याद है, how my mom complimented me, how my mom praised me on a job well done. जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे मेरी माँ ने कैसे तारीफ की उस वक़्त, और well done कहा मेरी काम करने पे। Although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table. हाँ, अगरचे उस वक़्त मुझे ये याद है, अगरचे उस वक़्त कपड़े उनको तहाते उनको टेबल पर रखते मेरे हाथ से बहुत सारे कपड़े नीचे गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे क्या किया, इनकरेज किया, यानी कि उसने मुझे शाबाशी दी, तो वो भी मुझे याद है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक it is enough for today, but related to this here is home assignment for you. तो यहाँ आप देखिए, I might as well enjoy my work, ये लाइन आपने अभी मैं पढ़ी। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है नीचे,
ए और बी दो क्वेश्चन हैं। हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, यानी कि ये किसने किसको बोले, ये वर्ड्स किसने किसको बोले, कौन से वर्ड्स, आई माइट एज वेल इंजॉय माई वर्क, आपको ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है वाई वॉज स्पीकर्स मदर थ्रिल्ड, स्पीकर की जो मॉम थी, मदर थी, वो क्यों खुश थी, ये भी आपको बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो क्वेश्चंस को आप करके फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना। तो सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।